हेलो गाइस। आज हम लौटे हैं हिस्ट्री में पार्ट थर्ड लेके, जो कि है 1.3 ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड टू प्रिविलेजेस। देखिए, ये चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके हम दो पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट। तो आइए इसके पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इस पैराग्राफ का नाम है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड envisages an end to privileges। मीन्स उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and for scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of society. In addition to merchant and manufacturers, the third estate include professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques Rousseau. In his two territories of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of monarchs. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on the social contract between people and their representatives in TB spirit of the laws. Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, executive, and the judiciary. This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution, its guarantee of individual rights, was an important example for political thinkers in France. The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people people through books and newspapers. These were frequently read aloud in groups for the benefits of those who were who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to able to meet the expense of stage generated anger and protest against the system of privileges.
Source A. Accounts of lived experience in the old regime. First, Joris Denton, who later became active in revolutionary politics, wrote to a friend in 1793, looking back upon the time when he had just completed his studies. I was educated in residential college of places. There I was in the company of important men. Once my studies ended, I was left with nothing. I started looking for a post. It was impossible to find one at the law courts in Paris. The choice of a career in the army was not open to me as I was not a noble by birth, nor did I have a patron. The church too could not offer me a refuge. I could not buy an office as I did not possess a so my old friend turned their backs to me. The system had provided us with an education without however offering a field where our talent could be utilized. An Englishman, Arthur Young, traveled through France during the years from 1787 to 1789 and wrote detailed description of his journey. He often commented on what he saw. He who decided to be served as the waited upon by Slavs, ill-treated slaves at that must be fully aware that by doing so he placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in had he chosen the service of free and well treated men, and he who chooses to dine to the compartment of his victims' groans should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped or his son's throat is slit. उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर भरने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह के उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर इसे फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व
वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। यह सभी पढ़े लिखे थे और इनका आह, मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, सम्मान, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉस नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिक के इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलों की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई एक्सवाई द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाले व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। स्रोत सोर्स ए प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद समय को याद करते हुए सन 1393 में अपने एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसिस पैसा
प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है: सेवा टहल में लगे अपने गुलाबों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी का अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना पड़ता।